آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے تاجدار ارض و عجم، مالک رکاب امم، بے کس و بکس، بے بس و بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، جناب عبداللہ کے دل کا سہارا، روح فدا جگر گوش عبداللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ کے سنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحابہ دائما ابدا۔ ایک بہت پرانے شاعر عبد الرحمن جانی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، مدینہ شریف جانے کے بعد سامنے نبی کا روضہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے حضور؟ دیکھوں نہ زندگی میں کبھی مدینہ میرے حضور، اور آنکھوں کی روشنائی سے روح حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے حضور۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن کسی اچھی بات کو سن کر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب جس کو لگوانا ہے وہ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ نے حدیث کی تہ پر ارشاد فرمایا حساب و کتاب کے بعد اس کھجور کے درخت کے سائے میں کوئی اور نہیں بیٹھے گا، وہی بیٹھے گا جس نے سبحان اللہ کہا ہوگا۔ بولے مچل کے زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو آئے یہاں۔ ہم اوپر بیٹھ کر جو ہے ذکر کرتے ہیں، اب نیچے بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں۔ اوپر بیٹھ کر سننا حضرت حسان کی سنت، بیان کرنا حضرت حسان کی سنت، نیچے بیٹھ کر سماعت کرنا میرے اور آپ کے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے سید صاحب سید زاہد علی میاں صاحب قبلہ ہے جی نہیں؟ اب دیکھیے میں نے ابھی درود پاک پڑھائی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحابہ کی انجمن تھی، صحابہ کی کانفرنس تھے، صحابہ کا اجتماع تھا۔ اسی اجتماع میں جب میرے نبی نے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کی قبر انور پڑ جائے گا اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت نہیں، بہت سارے ایسے امتی ہیں جو غریب ہیں، بہت سارے ایسے امتی ہیں جو مسکین ہیں، بہت سارے ایسے امتی ہیں جن کے پاس، اب میں خطابت کی زبان میں بولنے کی اجازت چاہتا ہوں، عرض کیا یا رسول اللہ بہت سارے ایسے امتی ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس شربت نہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں، یا رسول اللہ ہیرے جواہرات نہیں، جن کے پاس موتی نہیں، جن کے پاس لال و گوہر نہیں، جن کے پاس کھیت و خلیان نہیں، جن کے پاس دولت کا انبار نہیں، یا رسول اللہ ایسے آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں امتی ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں، یا رسول اللہ دولت ہے نہیں جس کو خرچ کریں گے اور خرچ کرنے کے بعد فارم بھریں گے اور فارم بھرنے کے بعد میں وہ آپ کی جو ہے تیار محبت میں مدینہ شریف آ جائیں گے، آپ کے روضے انور کی زیارت کریں گے، ان کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہوگی۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس زر ہے نہیں، جن کے پاس مال ہے نہیں، آقا مال ہوگا نہیں تو آئیں گے کیسے، سونا ہوگا نہیں تو آئیں گے کیسے، ہیرے جواہرات ہوں گے نہیں تو آئیں گے کیسے، یا رسول اللہ جب وہ آپ کی بارگاہ طیبہ میں آپ کے روضے انور کی زیارت کرنے کے لیے آ نہیں پائیں گے تو یا رسول اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں جب مدینے کی سرزمین پر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر
मैंने आयत करीमा पढ़ी सूरह बकरा की, आप उठाइए तफसीर मजहरी पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें लिखते हैं कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक खाना काबा को रूए जमीन से उठा ना दिया जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की, लिखा है उसमें साफ तौर पे, आप नेट खोलिए, गूगल को इस्तेमाल कीजिए, आज बड़े फोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, दौर है, खोलिए उस पे नक्शा निकालिए काय का, काबे शरीफ से लेकर मस्जिद अक्सा तक का, और देखिए उसमें जब आप गूगल पे टाइप करेंगे और जब निकल कर पूरा नक्शा आएगा तो आप देखेंगे कि खाना काबा और बैतुल मक़दिस दोनों के बीच में एक जगह है। यानी जब खाना काबा को उठाया जाएगा और बैतुल मक़दिस की तरफ लाया जाएगा तो बीच में मेरे नबी का रोजा पड़ेगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बीच में मेरे नबी का रोजा पड़ेगा। जब खाना काबा को अपनी जगह से उठाया गया, बैतुल मक़दिस की तरफ ले जाया गया, जब खाना काबा वहां से चला और उसने चलना शुरू किया, जैसे ही खाना काबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के करीब आएगा, खाना काबा वहीं ठहर जाएगा। जब खाना काबा ठहरा और ठहरेगा तो हुजूर के रोज़े अनवर पर सलाम करेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही खाना काबा सलाम करेगा तब मेरे नबी के रोज़े अनवर से आवाज आएगी। जिसको शक लगे या जो इसमें जो है तहकीक करना चाहता है, तफसीर मजहरी उठाए और आयत करीमा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम की तफसीर पढ़ना शुरू करे। बड़े फोन तो हर आदमी चलाता है, इसलिए चलाते हैं, किसी को व्हाट्सएप चलाना है, किसी को फेसबुक चलाना है, किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, किसी को और ऐप चलाना है, किसी को यूट्यूब चलाना है, किसी को कुछ चलाना है। लेकिन मेरे दोस्त, बड़ा फोन आपने चलाया, नेट पर हर तरीके की किताब मौजूद है। यानी कि आप हिंदी में किताब डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी में कीजिए, पीडीएफ में लाइए और पीडीएफ में लाने के बाद मुताला कीजिए, आप लीजिए वहां से। नेट ने आपके लिए कर दिया, दावत इस्लामी ने आपके लिए किताबें लिखकर नेट पे छोड़ दी, सुन्नी उलमा ने बहुत सारी किताबें, आज हर किताब नेट पे मिलेगी। आप बड़ा फोन इस्तेमाल करते हैं, किताबों के हिंदी में वहां से डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ ऐप को जो है वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां मुताला करना शुरू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, जब खाना काबा हुजूर के रोजे के करीब पहुंचेगा, वहां जाकर मुस्तफा को सलाम करेगा। मेरा और आपके प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर से आवाज आएगी, ऐ खाना काबा, जरा ये बता तू मेरी उम्मत के लिए मैदान हश्र में कुछ किफालत करेगा? किफालत नहीं समझे? किफालत का माना आता है तू मेरी उम्मत की तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, यानी तू मेरी उम्मत की कुछ बख्शिश करेगा, मेरी उम्मत की शफाअत हश्र में करवाएगा। जब इतना कहा मेरे नबी ने तो खाना काबा जवाब देगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैं धरती पर हूँ, जब से अल्लाह ने मुझे बनवाया यहाँ पर, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले खाना काबा की तामीर की थी फरिश्तों ने, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, मुतअद्दिद तरीके पे तामीर की गई। आप उठाइए तफसीर रूहुल बयान, पढ़ना शुरू कीजिए खाना काबा की तामीर के बारे में। इसी आयत करीमा में पूरी उसकी तामीर की बहस दी गई है, कितनी मर्तबा खाना काबा को जो है तामीर किया गया, कितनी बार दोबारा से बनाया गया। अब देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब मेरे मुस्तफा कहेंगे ए खाना काबा, जरा तू ये बता, क्या हश्र के मैदान में तू मेरी उम्मत की कुछ शफाअत करवाएगा, कुछ किफालत करेगा, कुछ अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत के लिए सिफारिश के लिए कहेगा? तब खाना काबा कहेगा, या रसूल अल्लाह, जब से मैं धरती पे हूँ और जब से लोग मेरे पास आ रहे हैं, यानी या रसूल अल्लाह, जब से आपकी उम्मत मेरी ज़ियारत के लिए आ रही है, या रसूल अल्लाह, जितने मुसलमान, जितने आपके मानने वाले मेरा तवाफ करने के लिए आए, या रसूल अल्लाह, उसकी शफाअत के लिए मैं काफी हूँ। अब जो गए उसकी शफाअत के लिए खाना काबा काफी, जो गए, मैंने कहा था ना अभी, जिनके पास पैसा है वो गए, जिनके पास माल है वो वहां गए, जिनके पास रुपया पैसा है वो वहां गए, और जाने के बाद उन्होंने जो है हज का जो है अरकान
وعدہ کیا. اب میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا, خانہ کعبہ نے کہا یا رسول اللہ جتنے لوگ میری بارگاہ میں آئے اور میری زیارت کی ان کی کفالت میں کروں گا, یعنی ان کی شفاعت میں کرواؤں گا. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, اے خانہ کعبہ ذرا تو یہ تو بتا, جو تیرے پاس آئے تھے ان کی شفاعت تو کروائے گا, جو تیرے پاس نہ آ سکے کسی وجہ سے ان کی شفاعت کون کروائے گا. تب خانہ کعبہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, تب خانہ کعبہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, یا رسول اللہ جو میرے پاس آئے تھے ان کی شفاعت میں کرواؤں گا, جو میرے پاس نہ آ سکے ان کی شفاعت کے لیے آپ کافی ہیں. بولے سبحان اللہ. ایک بات اور بتاؤں نہیں بتاؤں, ختم کروں؟ بولو سبحان اللہ سے, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اب حاجی جی جا رہے ہیں, پیسے والا ضروری نہیں کہ پیسے والا جا رہا ہے, خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے مقدر والے جاتے ہیں, پیسے والے نہیں جاتے. سمجھ رہے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جا پا رہے ہیں کسی وجہ سے, یا یہ مان لیجیے مصطفیٰ کا بلاوا نہیں آیا ہے, تو ان کا حج کا ثواب یہیں اگر مل جائے تو کیسا رہے گا؟ بولو کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ بولو یار, کچھ بولا کرو بھائی, بولو سبحان اللہ. میری مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو نیک اولاد ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے, مصطفیٰ بولے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ دیدار کرے اچھی نیت کے ساتھ, مصطفیٰ نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ کرے گا تو 100 کا ملے گا, اللہ کے یہاں کمی نہیں. بولے سبحان اللہ. مدینہ شریف ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں آتے ہیں. حضرت امام مالک کے بارے میں بتایا نا, ابھی حضرت نے کانٹا چبھ گیا تھا, نکالا ہی نہیں. لوگوں نے کہا حضور نکال لیجئے. فرمایا حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا, مالک تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا اے پروردگار عالم تیرے محبوب کے مدینے میں گیا تھا, وہاں یہ کانٹا چھپا ہے, بس یہ نشانی لے کر آیا. بہت مقدس جگہ ہے, بہت پاکیزہ جگہ ہے, وہاں جانے کے لیے ہر عاشق کی تمنا ہے. لیکن میرے دوست ضروری ہے ماں باپ کا ادب کیجیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک تابعی ہیں, تابعی نام ہے حضرت مالک بن دینار. آج سے 2 سال پہلے میں کیرل میں تھا, ان کا مزار پاک وہاں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 4 مرتبہ میری حاضری ہوئی بات. حضرت مالک بن دینار, کتاب کا نام ہے نور البیان. حدیث کو نقل کیا علامہ ابن راضی نے. فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ حج کے لیے گئے. جب آپ حج کرنے کے لیے پہنچے, خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے, تو دل میں خیال آیا اے پروردگار عالم کاش ایسا ہوتا کہ یہاں جتنے بھی حاجی حج کے لیے آئے ہیں یا جتنے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اے پروردگار عالم میں یہ پتہ کر سکوں کہ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا ہے اور کتنوں کا نہیں ہوا ہے, اور کتنوں کا عمرہ قبول ہوا ہے, کتنوں کا نہیں ہوا ہے. کہا یا اے پروردگار عالم جن کا حج قبول ہو گیا ہوگا میں ان کو مبارکباد دے دوں گا, اور جن کا قبول نہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ افسوس جتاؤں گا. یہ کہا انہوں نے, اور کہنے کے بعد طواف کر کے خانہ کعبہ کا اپنے کمرے میں آئے. شام ہوئی, آپ لیٹے بستر پر, خواب میں دیکھا تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی. فرمایا اے مالک بن دینار آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کتنوں کا حج قبول ہوا کتنوں کا نہیں ہوا. آواز آئی کہ اے مالک بن دینار جتنے بھی یہاں حج کرنے کے لیے آئے اور جتنے یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہم نے سب کا حج و عمرہ قبول فرما لیا, اور فرمایا سوائے ایک کا ہم نے قبول نہیں فرمایا. اتنا کہا. حضرت مالک بن دینار کی اتنا سننے کے بعد آنکھ کھل گئی. اب اسی پریشانی میں, کشم و کش میں کہ کہیں جو ایک جو تھا کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا کہیں وہ میں تو نہیں ہوں, یہ سوچنے لگے. دن بھر روئے حضرت مالک بن دینار. شام کا وقت دوسرے دن تو پھر قریب آیا, آپ بستر پر جا کر لیٹے. کیا دیکھتے ہیں, پھر ندائی. فرمایا گیا اے مالک بن دینار وہ جو ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں کیا گیا وہ آپ نہیں ہیں, وہ محمد بن ہارون ہے, بلخ کا رہنے والا بلخی, اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے. یہ صبح کو اٹھے, اور اٹھنے کے بعد پہنچے صاحب قبائل کے پاس جہاں بلخیوں کا قافلہ ٹھہرایا گیا تھا,
वहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद पूछा आपने कोई मोहम्मद बिन हारून नाम के हाजी जी है? कहा हाँ वो तो बहुत परहेजगार है, बहुत मुत्तकी हैं, 40 साल हो गए लगभग, दिन में रोजा रखते हैं, रात में अल्लाह की बारगाह में पूरी पूरी रात रोते हैं और क़याम करते हैं, बहुत मकबूल बंदा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब सुना कि बहुत मकबूल बंदा है, रात निदा आई थी अल्लाह की जानिब से, तो ये कहा गया था कि बहुत गुनहगार है, उसका हज कबूल नहीं किया गया है। अब यहाँ आकर इन्होंने सुना कि बहुत मुत्तकी है, दिन में रोजा रखता है, रात में नमाजें पढ़ता है, लंबा लंबा क़याम करता है, लंबा लंबा सुजूद करता है, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है, दरियाफ्त किया हजरत मालिक बिन दीनार ने। ये बताइए कि वो हैं कहाँ? कहा वो चटियल मैदान में मिलेंगे, आप मक्के की सरहदो सीमा के करीब जाइए, जहाँ चटियल मैदान होंगे वो वहीं मिलेंगे। आप निकले उसको ढूंढने के लिए, जैसे हजरत मालिक बिन दीनार ने ढूंढना शुरू किया तो एक जो है चटियल मैदान में वो शख्स खड़े हुए थे, नाम क्या है? हारून, मोहम्मद बिन हारून बल्खी। अब बैठे हुए हैं वो। हजरत मालिक बिन दीनार ने उनको देखा तो किस हालत में देखा? उनका जो दायां हाथ है वो कटा हुआ है, और कटा हुआ है हाथ से उन्होंने गर्दन से उस कटे हुए हाथ को बांध रखा है, सीने की जो हंसली की हड्डी होती है उसमें उन्होंने सुराख किया है और उसमें से जंजीर डाल के अपने पैरों में लाए हैं, और पैरों में लाने के बाद में बहुत कस के उसको बांध रखा है, इतनी कसके से बांधा है कि हाथ अब हिल नहीं सकता, पैर अब हिल नहीं सकता। हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा कि वो इसी हालत में, हाथ कटा हुआ, गर्दन से लटका हुआ है, हंसली से यानी सीने की जानिब से एक जो है जंजीर पड़ी हुई है, और पूरे जिस्म पर घूमने के बाद दोनों पैरों को और हाथों को जकड़े हुए हैं। इसी हालत में वो हारून जो है यानी कि जो है सजदा कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। जब मालिक बिन दीनार उनके करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ये तो नमाज पढ़ रहा है। अब हारून ने जब इनकी वो सुनी, कदमों की आहट सुनी, खड़े हो गए, सलाम फेर दिया, और फेरने के बाद पूछा बताइए कैसे आना हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार ने इरशाद फरमाया, ये बताइए हम तो यहाँ आए थे और हमें जो है एक ख्वाब नजर आया था। तब हारून, मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा था कि ये ख्वाब आज ही आपको नहीं आया है, 40 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए 40 साल से आ रहा हूँ। खाने काबा का तवाफ करने के बाद में यहाँ मैं दिन में रोजा रखता हूँ, रात में लंबे लंबे क़याम, लंबे लंबे सुजूद किया करता हूँ, पूरी पूरी रात परवरदिगार आलम की इबादत किया करता हूँ। लेकिन 40 साल से एक तुम्हारी तरह अल्लाह का बंदा, यहाँ पर एक अल्लाह का मकबूल वली आता है और यहाँ पर जो है हज करने के लिए आता है, वो एक ख्वाब देखता है और उसको यही ख्वाब में बताया जाता है कि इसका हज मकबूल नहीं किया गया है बल्कि मरदूद हो गया। कहा आप कहाँ से आए हैं? हजरत मालिक बिन दीनार ने अपना पता दिया और देने के बाद इरशाद फरमाया, जरा ये वजह तो बताइए कि आप 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आपका हज जो है आज तक कबूल नहीं हुआ, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? आप बताइए। वो ऐसी बात है तो उसको हम जो है आगे लोगों को बताएंगे ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें, ताकि लोग उस बात के करने से बचे। इतना सुनना था। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा था, आप सुनना चाहते हैं कि हमारा गुनाह क्या है? आप ये सुनना चाहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा भयानक गुनाह किया है? कहा हाँ हम सुनना चाहते हैं, बताइए आपने कौन सा गुनाह किया है? तब मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा था, एक दिन मैं शराब पिया हुआ था और इतनी शराब पिया हुआ था कि मुझे चलने में मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, और इतने लड़खड़ा रहे थे कि एक लड़की ने मुझे जो है अपनी पार्टी में बुलाया था, उसके यहाँ मैं गया था, वहां मैंने इतनी शराबी थी कि मुझे चला ना जा रहा था। जब चला ना जा रहा था लड़की मुझे उठा के लाई और लाने के बाद में उसने मेरे घर पे छोड़ा। जैसे ही घर पे छोड़ा है और घर पे छोड़ने के बाद में जैसे ही वो लड़की अपने घर की तरफ गई, मैंने अपने घर की दहलीज पे कदम रखा, अंदर जैसे ही सहन में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ एक तन्नूर के करीब खड़ी हुई है, जिसको आज आप लोग तंदूर कहते हैं, उसको उर्दू जबान में तन्नूर कहा जाता है। तन्नूर के करीब खड़ी हुई है। मेरी माँ ने मुझे देखा कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, शराब पी के आया है। मेरी माँ ने कहा था तुझे शर्म नहीं आती है? आज शाबान की आखिरी शब है, कल रोज उठेंगे, सुबह को सहरी खाएंगे, माह रमजान का पहला रोजा रखेंगे, तुझे शर्म हया नहीं कि तू आज शाबान
रमजान की आखिरी रात में शराब पीकर यहाँ आया है। कहा जैसे ही मेरी माँ ने मुझसे इतना जुमला कहा मुझे गुस्सा आया। शराब की हालत में मैं था, पैर मेरे लड़खड़ा रहे थे। जब मेरी माँ ने मुझे डांटा, मैंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया मारने के लिए। जैसे ही मैंने हाथ उठाया मारने के लिए, फिर मैं रुक गया। अब मैंने अपनी माँ को डांटना शुरू किया। मेरी माँ ने और जुमले बोले। कहा बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती, आज आखिरी रात है और तू यहाँ पर ऐसा कर रहा है। कल लोग जो है माह रमजान का पहला रोजा रखेंगे। कितना बड़ा बदनसीब है तू, कितना बड़ा बदबख्त है तू, तुझको शर्म नहीं आती। जब मेरी माँ ने ऐसे जुमले मुझसे कहे, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी माँ को अपने हाथों में उठाया और उठाने के बाद जलता हुआ तंदूर जो मेरी माँ ने गर्म किया था, किताब में लिखा हुआ है, इतना गर्म तंदूर हो चुका था कि उसमें जो है आग लाल और सफेद हो चुकी थी। वो जालिम कहता है मोहम्मद बिन हारून बल्खी कि मैंने अपनी माँ को अपने दोनों हाथों पे उठाया और उठाने के बाद सुर्ख तन्नूर में फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही ऐसा देखा गया, माँ तन्नूर के अंदर गई, चल के राख हो गई। बीबी अपने कमरे के अंदर है। बीबी ने देखा कि मेरा शौहर ऐसा कर रहा है, अपने शौहर को पकड़ा, कमरे के अंदर ले गई, दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद जल्दी से तन्नूर के करीब आई कि माँ का हाल क्या है, मेरी सासू माँ का हाल क्या है। जैसे ही बीबी ने आके तन्नूर के करीब देखा, यानी एक बहू ने अपनी सास को तन्नूर के अंदर झांक के देखा, किताब गवाह है, शाहिद है किताब के औराक कि जैसे ही उन्होंने देखा था तो माँ सुकड़ कर, यानी कि जो है आग के जो है टुकड़ों से सुकड़ कर राख बन चुकी थी। अब इतनी उसमें जान नहीं बची जो उसको वहां से निकाला जाए। बीबी को बहुत दुख हुआ, अल्लाह की बारगाह में बददुआ करने लगी और उसको उसके कमरे में, यानी कि अपने शौहर को उसके कमरे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद रात जब गुजर गई, अब मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जब यानी कि होश आया, सुबह का वक्त करीब आया, बीबी से कहा दरवाजा खोलिए। बीबी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, दरवाजा नहीं खोला जाएगा, बहुत बड़ा बदबख्त है तू, बहुत बड़ा यानी कि जो है गुनहगार है तू। तूने रात जो है अपनी माँ को यानी कि जलते हुए तन्नूर में फेंक दिया, तुझे शर्म नहीं आती। कहा मेरी बीबी तू तो मुझसे ऐसी बात ना किया करती थी, आखिर वजह क्या है। कहा तूने रात अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में फेंक दिया, जल के तेरी माँ रात का ढेर हो गई, तुझ पे तो अल्लाह का कहर बरसेगा, तू यही रहे, मैं अपने घर जा रही हूँ, अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। पहले की औरतें ऐसी हुआ करती थी, अगर उनका शौहर उनकी माँ पर जुल्म किया करता था तो बीबी अपने शौहर को छोड़ के चली जाया करती थी। लेकिन आज की बीवियां ऐसी है, आज की पत्नियां ऐसी है, आज की औरतें ऐसी है कि अगर उनका शौहर उनकी माँ के लिए एक जोड़ा ला दे, उनका शौहर उनकी माँ के लिए एक दुपट्टा बाजार से 50 रुपए का खरीद के ला के उसके अपनी माँ के सर पे ढांक दे तो बीवी को बुरा लगता है और वो ये कहने पे फख्र करती है तुम तो अपनी माँ को देखते हो, तुम्हें हमसे क्या लेना देना। लेकिन ये आज की सोसाइटी है, जैसी तरबियत आपने अपनी बेटी को दी थी वैसा जवाब आज उसका आपके सामने आया है। लेकिन वो पहले की बेटियां थी, उसने सुना, उसने देखा कि मेरे शौहर ने मेरी सास को तन्नूर में फेंक दिया है, अपने शौहर को ठोकर मारी, अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मोहम्मद हारून बिन बल्खी कहता है कि जब मैं सुबह को उठा, मैंने अपनी माँ को देखा तन्नूर में जाके राख का ढेर बनी हुई थी। कहा मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने शराब पी थी और शराब के नशे में अपनी माँ को जलते हुए तन्नूर में फेंक दिया। कहा मैं अपने घर के सेहन में गया, कुल्हाड़ी टंगी हुई थी, मैंने कुल्हाड़ी को उठाया और उठाकर अपना हाथ काट दिया और उस हाथ को मैंने बांध दिया है रस्सी से और उसको मैंने लटका दिया है अपने गले में। कहा मैंने जलती हुई एक सरिया ली और सरिया से अपने सीने में दाग दिया, आर पार मैंने हंसली की हड्डी को पार कर दिया और वहां से मैंने एक जंजीर डाली, यहाँ से जंजीर डाली गई, पार जंजीर निकाली गई। मोहम्मद हारून बिन बल्खी कहते हैं कि जब मैंने जंजीर को सीने की जानिब से डाला, पीठ की तरफ से निकाला और निकालने के बाद में मैंने अपने दोनों पैरों को इस कदर कस के बांधा है कि आज तक मैंने उस जंजीर को खोला नहीं। हाथ जैसा काट के मैंने लटकाया था वैसा ही लटका हुआ है। लेकिन ऐ मालिक बिन दीनार, 40 साल हो गए इस वाक़िए को। 40 साल पहले मैंने अपनी माँ को तन्नूर में फेंका था, 40 साल पहले मैंने अपने हाथ को काटा था, 40 साल पहले मैंने अपने हंसली की हड्डी में सुराख किया था, 40 साल पहले मैंने अपने कदमों को बांधा था। आज
40 साल से यहाँ हज के लिए आ रहा हूँ, 40 साल से मैं यहाँ रमी कर रहा हूँ, 40 साल से मैं यहाँ मीज़ाब रहमत देख रहा हूँ, 40 साल से मैं यहाँ खाने काबा का बराबर तवाफ करने आता हूँ, 40 साल से हुजूर के रोज़े अनवर पर ज़ियारत करता हूँ, लेकिन 40 साल इबादत करने के बाद कोई फायदा अभी तक नसीब नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी अगर अपनी माँ को तंदूर में फेंकने के बाद, माँ को सताने के बाद 40 साल तक अगर खाने काबा का इबादत करे, खाने काबा का तवाफ करे, सुबह को रोजा रखे, शाम को कयाम करे, इतना लंबा सजदा करे और बहुत लंबा कियाम करे, और इतनी इबादत के बाद में उसकी इबादत का उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आखिर वजह क्या है? बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? माँ को सता के अगर जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अल्लाह की रजा इसमें है कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं। हदीस बोली ना मैंने अभी, मुस्तफा ने कहा था जो नेक औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को खुश दिली से देखे, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आप खाना काबा का हज करने गए नहीं, घर बैठे आपने माँ बाप को देख लिया, हज मकबूल का सवाब आपको अता कर दिया गया। मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है अपने माँ बाप की कदर कीमत कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी औलाद आपकी इज्जत नहीं करेगी। समझ रहे हैं? जुमलों को कंधा कीजिए अपने कुलूब पे और याद कीजिएगा, कल से माँ बाप का अदब जो है नहीं कर रहे थे, अब कीजिएगा। मेरे साथ जो है तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह व मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।